Hello dear students. In last lecture we have studied about direction angles, direction cosines and direction ratios, as well as in previous of that lecture we have studied about the dot product. In last lecture we have completed up to question number 4. Now we are going to start question number 5. If a vector and b vector are two vectors perpendicular to each other, then prove that a plus b whole square is equal to a vector minus b vector whole square. Now देखिए, जैसे कि गिवन है, given that a vector and b vector are perpendicular to each other, and we know that if vectors are perpendicular to each other, we have dot product of that two vectors is equal to 0. Now we'll find this both. जैसे कि a vector plus b vector whole square, it will gives us a vector plus b vector dot a vector minus b vector. That is nothing but equal to taking dot product a vector dot a vector minus a vector dot b vector plus b vector dot a vector, sorry, this is plus a vector dot b vector plus b vector dot a vector and plus b vector dot b vector. Now it is nothing but magnitude of a vector whole square plus this 0 plus 0 plus magnitude of b vector whole square. Means we have a vector plus b vector whole square is equal to magnitude of a vector square plus magnitude of b vector whole square. Call it as first. Similarly, we will find a vector minus b vector whole square. It is also a vector minus b vector dot a vector minus b vector, because it is square. That is nothing but a vector dot a vector is magnitude of a vector whole square minus a vector dot b vector minus b vector dot a vector and minus minus plus magnitude of b vector whole square b dot b. And now we know that a dot b and b dot a both are 0, means this becomes 0. That is nothing but equal to magnitude of a vector whole square plus magnitude of b vector whole square. Call it as second. It is nothing but a vector minus b vector whole square. And then from first and second we can say, from first and second we can easily say that a vector plus b vector whole square is equal to a vector minus b vector whole square. समझ में आया आपको? This is the answer of question number 5. Now read question number 6 carefully. Find the values of c so that for all real values of x, the vectors xci cap minus 6j cap plus 3k cap and xi cap plus 2j cap plus 2cx cap make an obtuse angle. हम कंसीडर करेंगे लेट p वेक्टर इज इक्वल टू एक xci कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप and q vector is equal to this xi cap plus 2j cap plus 2cxk cap. Given that p vector and q vector make an obtuse angle, if they makes obtuse angle, then we know that p vector dot q vector is always less than 0, because as theta is obtuse, cos theta is always negative and magnitude of p vector and magnitude of q vector are always positive, means pq cos theta ये जो टोटल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आने वाला है. ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में भी सीखा है कि if theta is obtuse, the dot product of that two vectors is always less than 0. अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनका, therefore we can say that xci cap minus 6j cap plus 3k cap dot xi cap plus 2j cap plus 2cx into k cap is less than 0. Therefore we can say that xc into x is cx square minus 12
and plus 3 into 2cx is 6cx is less than 0. It means we can say that cx square plus 6cx minus 12 is less than 0. Now this is a quadratic expression for all real values of x. Its value is 0 and it implies that, therefore we can say that the coefficient of x square present here, it must be less than 0 and discriminant delta must be less than 0, where delta is what? Delta is discriminant. Discriminant means the b square minus 4ac value, means the value of c is less than 0 and discriminant delta is what? Delta is 6c square, 6c whole square means 36c square minus 4 into ac into minus 12. It must be less than 0. It means we can say that c is less than 0 and this is 36c square minus minus plus 48c is less than 0. इसको अब डिवाइड करते हैं 12c से, 12 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे मिलेगा हमें, therefore we can say that therefore c is less than 0 and अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे आएगा 3c square plus 4c is less than 0. It means we can say that c into bracket 3c plus 4 is less than 0. But therefore we can say that, अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, उसमें c is less than 0 है. It means we can say that 3c plus 4 must be greater than 0. अब ये greater than 0 क्यों आया? क्योंकि c less than 0 है, ये लेस देन 0 है तो इसको पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है. लेस देन 0 का मीनिंग नेगेटिव होता है. Therefore we can say that 3c is greater than minus 4, therefore c must be greater than minus 4 by 3. Means c is less than 0, that is we can say that c is less than 0 and c is greater than minus 4 by 3. Means c must be belongs to the interval open interval minus 4 by 3 to 0. c must belongs to this interval minus 4 by 3 to 0, यानी c की वैल्यू minus 4 by 3 से ज्यादा और 0 से कम होना जरूरी है, तब ये जो डॉट प्रोडक्ट है of these two vectors is less than 0. तो ये सॉल्यूशन अच्छे से नोट कर लो. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फुल वैल्यू लेस देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो इसमें पहले एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको लेस देन 0 लेंगे टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज लेस देन 0. समझ में आ रहा है आपको? तो इसको नोट कर लीजिए. चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Now look at for question number 7. Show that the sum of the lengths of projection of this given vector on coordinate axis where p is equal to 2, q is equal to 3 and r is equal to 4 is 9. We'll find the projection of this vector one by one on x-axis, y-axis and z-axis. Let a vector is equal to p I cap plus q j cap plus r k cap. Therefore we can say that projection of a vector on x-axis, that is on I cap, because I cap is always lie on x-axis. a वेक्टर का अगर x-axis पर का प्रोजेक्शन निकालना है यानी I cap पे का प्रोजेक्शन निकालना है तो therefore ये प्रोजेक्शन मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ a vector on I cap is nothing but equal to a vector dot I cap upon magnitude of I cap. a vector यानी क्या दिया है आपको? p I cap plus q j cap plus r k cap dot I cap divided by
मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज ऑलवेज 1, दैट इज इक्वल टू, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो p इंटू 1 इज 1, p अपॉन 1 इज p इटसेल्फ, यानी ये p आ गया और p की वैल्यू आपको दी है p इज इक्वल टू 2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2, मींस प्रोजेक्शन ऑफ a vector on I cap is equal to 2. Similarly, we can find projection of a vector on j cap, it must be equal to q, that is nothing but 3, and projection of a vector on k cap means z axis is nothing but r, and that is 4. इनके अगर एडिशन करते हैं, therefore sum of projections is equal to क्या आएगा, is nothing but equal to 2 plus 3 plus 4, that is equal to 9. यानी इस एग्जांपल से हमें कुछ आइडिया मिलती है कि कोई भी वेक्टर दिया है तो उसके जो कंपोनेंट्स है p q r, they are nothing but the projections of that vector on x axis, y axis and z axis respectively, itself that components, these are said to be projections. Okay, and sum of that projections is addition of that components, उनकी addition हो जाएगी p plus q plus r, that is nothing but 9. Now read next question, question number 8. Suppose that all sides of a quadrilateral are equal in length. It means the given quadrilateral is nothing but rhombus, because a quadrilateral in which all sides are in equal in length, that quadrilateral is said to be rhombus. यानी ABCD ये rhombus है, and opposite sides are parallel भी है, अगर sides all equal है तो parallel होना ही है उनको, तो we have to show that its diagonals are perpendicular, यानी simply यहाँ prove करना है हमें diagonals of rhombus are perpendicular to each other, and it is very easy. Consider quadrilateral ABCD such that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Therefore, we can say that magnitude of AB vector is equal to magnitude of BC vector is equal to magnitude of CD vector is equal to magnitude of DA vector. ये इसको लिखेंगे फर्स्ट, सभी चारों के मैग्नीट्यूड, चारों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, इसको AB वेक्टर मैंने ऐसा कहा, ये BC वेक्टर, CD वेक्टर, DA वेक्टर, ये सभी के मैग्नीट्यूड सेम है. Also it is given that also AB is parallel to DC and BC is parallel to AD. Therefore, we can say that AB vector is nothing but equal to DC vector and BC vector is equal to AD vector. इसको रीजन हम फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ये अगर पैरेलल है और उनके मैग्नीट्यूड सेम है, पैरेलल भी है, AB इज पैरेलल टू DC, और AB और DC ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, BC और AD का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और वो पैरेलल भी है, तो वो इक्वल वेक्टर्स हो गए. ठीक है. नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ अगर AC वेक्टर फाइंड करें तो AC वेक्टर इज इक्वल टू आएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसको लिखेंगे हम सेकंड. ट्रायंगल लॉ का यूज किया इन ट्रायंगल ABC, तो AC वेक्टर इज इक्वल टू आएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, एंड BD वेक्टर इज इक्वल टू, एंड BD वेक्टर इज इक्वल टू, BD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, BC वेक्टर प्लस, ठीक है, BD वेक्टर निकाला, BD वेक्टर, तो ये BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर. अब CD यानी क्या है, जैसे हमें यहां पे DC वेक्टर इज AB वेक्टर है, तो इसको हम
बी ए वेक्टर लिख सकते हैं, या माइनस डीसी लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बीसी वेक्टर माइनस डीसी वेक्टर, और डीसी वेक्टर इज नथिंग बट ए बी वेक्टर, तो बीडी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा बीसी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, इसको लिखेंगे हम थर्ड। समझ में आ रहा है? अब देखिए नाउ अगर डायगोनल्स हमें परपेंडिकुलर है प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है ऐसा प्रूव करो। तो हम प्रूव करेंगे यहां पे एसी वेक्टर डॉट बीडी वेक्टर, इसको फाइंड करेंगे। एसी वेक्टर आपने फाइंड किया है यहां पे ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, और डॉट बीडी वेक्टर आया है बीसी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, सॉरी माइनस ए बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए बी वेक्टर डॉट बीसी वेक्टर, ए बी वेक्टर डॉट बीसी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिखेंगे हम ए बी वेक्टर डॉट बीसी वेक्टर। अब देखिए ए बी डॉट बी सी और ए बी डॉट बी सी, इसको बी सी डॉट ए बी या ए बी डॉट बी सी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर होल स्क्वायर। लेकिन हमें पता है बी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम है, बट वी कैन से दैट magnitude of BC vector is nothing but equal to magnitude of AB vector. Therefore, we can say that this AC vector dot BD vector is equal to 0, and therefore we can say that AC vector is perpendicular to BD vector. Hence, we can say that diagonals are perpendicular to each other. Diagonals are perpendicular. समझ में आ रहा है आपको? डायगोनल्स कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो गया, जीरो हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, जब भी आपको किसी रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर है ये प्रूव करना है तो इसमें हमें पहले ये पता है कि इसके जो चारों साइड्स है, चारों साइड्स के जो वेक्टर्स है उनके मैग्नीट्यूड सेम है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यानी दोनों अपोजिट वेक्टर्स जो है अपोजिट साइड्स के वेक्टर वो इक्वल वेक्टर्स है। हमें डायगोनल AC और BD को किसी भी दो एडजेसेंट साइड के फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने AC को AB और BC के फॉर्म में और BD को भी AB और BC के फॉर्म में लिखा, और उनका डॉट प्रोडक्ट हमने जीरो दिखाया। ये प्रोसीजर आपको याद रखनी है व्हाइल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 9. Determine whether A vector and B vector are orthogonal or parallel or neither. यानी ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है, ये चेक करना है। इसके लिए कंडीशंस आपको पता होना जरूरी है। Two vectors are said to be perpendicular if their dot product is 0. They are said to be parallel if one vector is scalar multiple of another vector, or we can say that if the coefficients of I, J, K are in proportion. वो अगर प्रोपोर्शन में है, एंड अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो नाइदर की तरफ जाएगा, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप, और बी वेक्टर इज गिवन दैट 6i कैप minus 4j cap minus 2k cap minus 10k cap, sorry. Therefore we can say that A vector is equal to, देखिए यहां पे एक 3 जो नंबर है वो कॉमन दिख रहा है इसमें, ये दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 और दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें से 3 हम -3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 3i कैप minus 2j cap minus 5k cap, और b वेक्टर को लिखते हैं हम 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे आएगा 3i cap minus 2j cap minus 5k cap। तो यहां पे सीधा सीधा एक रिलेशन आपको मिलेगा, देयरफॉर a वेक्टर
upon minus 3 is equal to 3i cap minus 2j cap minus 5k cap and b vector upon 2 is equal to मिलेगा आपको 3i cap minus 2j cap minus 5k cap. अब दोनों की राइट हैंड साइड आपको सेम दिखती है, therefore you can say that minus a vector upon 3 is equal to b vector upon 2. तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो a vector is equal to आएगा minus 3 by 2 into b vector. Therefore you can say that a vector is parallel to b vector since a vector is a scalar multiple of b vector. यानी यहाँ पे जो दो वेक्टर्स है वो पैरेलल टू ईच अदर आ गए फर्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकंड में दिया है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप. देखते ही हमें पता चलता है कि 2 3 माइनस 1 एंड 5 माइनस 2 4 ये प्रोपोर्शन में नहीं हो सकते, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेके अब देयरफॉर a वेक्टर डॉट b वेक्टर चेक करेंगे. दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट दिस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. प्रोडक्ट लेंगे 5 into 2 10 minus 6 minus 4 that is nothing but equal to 0. A vector dot b vector is equal to 0 आया. Therefore we can say that a vector is perpendicular to b vector. यानी यहाँ पे a vector and b vector are orthogonal. यानी फिर लिख सकते हैं हम therefore a vector and b vector are orthogonal. Orthogonal का मतलब ही क्या होता है? They are perpendicular. They are perpendicular or orthogonal. थर्ड वन चेक करेंगे जहां पे दिया है आपको a वेक्टर इज माइनस 3 बाय 5 i कैप प्लस 1 बाय 2 j कैप और प्लस 1 बाय 3 k कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू है b वेक्टर इज 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3k कैप. यहां पे भी हमें डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस है और ये दोनों पॉजिटिव, यहां पे तीनों पॉजिटिव है, यानी यहां पे पैरेलल होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है. ठीक है, यहां पे पैरेलल क्योंकि इनके रेशियो सेम नहीं आ सकते, तो यहां पे भी हम डॉट प्रोडक्ट लेके देखेंगे. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कैसे आएगा, डायरेक्ट लेता हूं मैं, माइनस 3 बाय 5 into 5 plus 1 by 2 into 4 plus 1 by 3 into 3 that is equal to आएगा minus 3 plus 2 plus 1 that is nothing but 0. a vector dot b vector 0 आ गया. therefore a vector and b vector are orthogonal. यहां पे भी ऑर्थोगोनल आ गए. नंबर 4 यहां पे a वेक्टर इज इक्वल टू दिया है, a वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू है 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप. अब यहां पे भी हम डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए डॉट प्रोडक्ट लेके 4 इंटू 5 20 प्लस 2 प्लस 24 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 46 which is not equal to 0. therefore a vector and b vector are not orthogonal. ये ऑर्थोगोनल नहीं है. अब चेक करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स. आल्सो दिस 4 अपॉन 5 i का कोएफिशिएंट 4 और j का कोएफिशिएंट 5, इनका रेशियो
ये -1/-2 और यहाँ पे 6/4. Are they equal? They are not equal. Therefore, we can say that A vector is not parallel to B vector. तो आप लिख सकते हो आखिरी में कि therefore A vector and B vector are neither parallel nor orthogonal और neither orthogonal nor parallel. समझ में आया? ये चारों एग्जांपल्स अच्छे से नोट कर लीजिए. चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. Now look at for question number 10. Find angle P of triangle whose vertices are P, Q and R. एंगल P निकालना है. ट्रायंगल का एंगल P है तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि P इज एंगल बिटवीन विच टू वेक्टर्स. मैं जब फिगर निकालूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको फिगर नहीं दी हुई, फिगर निकाल देने के बाद आपको जो वेक्टर है उसको P से कोइनिशियल बना लेंगे. यानी PQ और PR में का एंगल है एंगल P. समझ में आ रहा है ना आपको? तो एंगल P हम लिखेंगे एंगल बिटवीन PQ वेक्टर एंड PR वेक्टर इज एंगल P. ये एंगल P है. ठीक है, PQ वेक्टर एंड PR वेक्टर, ये पहले नोट कर लो. अब हमें PQ वेक्टर और PR वेक्टर निकालने हैं. हमें PQR के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम पहले पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे. लेट P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर be position vectors of points P, Q, R respectively. Therefore, we have P vector is equal to, क्या आएगा यहां पर, -j cap -2k cap. Q vector is equal to 3i cap plus j cap plus 4k cap. R vector is equal to 5i cap plus 7j cap plus k cap. तो हम पहले फाइंड करेंगे PQ वेक्टर, that is Q वेक्टर minus P वेक्टर. Q वेक्टर है 3i plus j plus 4k minus P vector is minus plus j plus 2k, and that is nothing but equal to 3i cap plus 2j cap plus 6k cap. This is PQ vector. ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है तो हमें पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 plus 4 plus 36, that is nothing but equal to 7. 7 यूनिट्स, ये अंडर रूट ऑफ 49 आएगा तो 7 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड आ गया. also PR वेक्टर इज इक्वल टू आएगा R वेक्टर माइनस P वेक्टर. R क्या है, 5i plus 7j plus k और प्लस j plus 2k. ये आएगा 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप. इनके एडिशन करेंगे, ये आ गया PR वेक्टर. तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ PR वेक्टर निकालना पड़ेगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ PR वेक्टर इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 64 प्लस 9. अब 9 प्लस ये आएगा रूट ऑफ 98. 9 plus 25 34, 34 plus 64 is root 98, that is 7 root 2. अब एंगल बिटवीन PQ वेक्टर एंड PR वेक्टर निकालेंगे. therefore cos of P is equal to आएगा, जैसे फॉर्मूला है हमें पता, PQ वेक्टर डॉट PR वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ PR वेक्टर. अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. डॉट प्रोडक्ट में पहला PQ वेक्टर है यहां पर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट ये 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप अपॉन
ये आएगा 7 इंटू 7√2, दैट इज इक्वल टू, करो प्रोडक्ट अब, 3 इंटू 5 15 प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 49√2। तो cos p की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे लिखता हूं मैं, therefore cos p इज इक्वल टू आएगा, तीनों के एडिशन कर लीजिए यहां पे, ये 31 प्लस 18 इज 49 अपॉन 49√2, 49 कैंसिल हो जाएंगे, cos p इज इक्वल टू आएगा 1/√2, और अगर ये 1/√2 है तो therefore p इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। तो एंगल p की वैल्यू 45 डिग्री आएगी, क्योंकि हमें पता है cos ऑफ 45 डिग्री ये 1/√2 होता है। समझ में आया? इस तरह से एंगल p ऑफ दिस ट्रायंगल PQR इज ऑफ मेजर 45 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। इफ p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर बता है, यूनिट वेक्टर है, यानी अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूं ट्रायंगल एबीसी, ये फिगर भी दी है आपके टेक्स्ट बुक में, ये फिगर भी दी हुई है, गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, इनमें का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, मैं वंस अगेन आई विल चेक फॉर देयर इज अ फिगर इन टेक्स्ट बुक और नॉट। देखिए टेक्स्ट बुक में सेम फिगर दी है यहां पर। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर, जब हम p वेक्टर और q वेक्टर को देखते हैं तो दोनों वेक्टर ये कोइनिशियल वेक्टर्स है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, q वेक्टर और r वेक्टर ऑल आर इक्वल, यानी ये 1 यूनिट दिया है मैग्नीट्यूड, यानी ट्रायंगल एबीसी जो बनेगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये 60 का होगा, ये 60 का होगा, और ये भी 60 का होगा। लेकिन यहां पे हम अगर देखें तो आर वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमें ऐसा दिया है तो p वेक्टर और r वेक्टर में का जो एंगल है इट बिकम्स एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये एंगल बनेगा 120 डिग्री वाला। टू मेक देम कोइनिशियल बनाने के लिए, जैसे p वेक्टर डॉट q वेक्टर निकालना है तो पहले उनमें का एंगल निकालना पड़ेगा और फिर इनमें का एंगल निकालना पड़ेगा। तो p वेक्टर और r वेक्टर का एंगल 120 डिग्री। इसका जो आंसर है अपने नोट्स में भी गलत हुआ है, सेकंड p डॉट r का नोट्स में भी गलत है, नवनीत यानी डाइजेस्ट में भी गलत है, और टेक्स्ट बुक में भी गलत है। p डॉट r का आंसर, अगर डायरेक्शन ऐसा दिया है तो ये एंगल 120 डिग्री कंसीडर करना हमें नेसेसरी है। तो देखिए यहां पर गिवन दैट p vector, q vector, r vector are unit vectors, therefore magnitude of p vector is equal to magnitude of q vector is equal to magnitude of r vector is equal to 1। ठीक है, अब according to the figure, according to given figure, triangle ABC is an equilateral triangle। क्योंकि तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर इज 60 डिग्री। p वेक्टर और q वेक्टर का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। देयरफॉर p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू magnitude of p vector into magnitude of q vector into cosine of angle between a vector and b vector, that is nothing but equal to 1 into 1 into 1 by 2। तो p vector dot q vector is equal to आएगा 1 by 2। समझ में आ रहा है? Also angle between p वेक्टर एंड r वेक्टर, p वेक्टर और r वेक्टर का एंगल,
अगर ये Q डॉट R अगर फाइंड आउट करने को बोला था तो 60 डिग्री लेते थे, ये P डॉट R बोला है, तो एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर इज 120 डिग्री। तो देयरफॉर P vector dot Q vector is equal to magnitude of P vector into magnitude of Q vector into cos of 120 degree। तो that is equal to आएगा 1 into 1 into cos 120 की वैल्यू क्या आएगी -1/2। तो P vector dot R vector, सॉरी R vector P vector dot R vector is equal to आएगा -1/2। तो ये आंसर को आप करेक्ट कर लीजिए। एक बार आप खुद सोचिए कि क्या मैं कहता हूं वो बराबर है। किसी भी दो वेक्टर्स का एंगल हम जब कंसीडर करते हैं, एंगल बिटवीन डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन में पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर करते समय एंगल हमें 120 डिग्री कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Now look at for question number 12. Find the vector projection. Vector projection निकालना है। Find the vector projection of PQ vector on AB vector where coordinates of point P, Q, AB are given. Just हम consider करते हैं position vectors. Let P vector, Q vector, A vector, B vector be position vectors of points P, Q, A and B respectively. Therefore we can say that P vector is equal to P के coordinates है -2, 1, 3, that is -2 I cap plus j cap plus 3k cap. Q vector is equal to 3 I cap plus 2j cap plus 5k cap. A vector is equal to 4 I cap minus 3j cap plus 5k cap. R vector is equal to, B vector is equal to this 7 I cap minus 5j cap minus k cap. ये हो गया आपका P वेक्टर, Q वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर। हमें PQ वेक्टर और EB वेक्टर निकालना है। देयरफॉर PQ वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। तो Q वेक्टर यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस 5k माइनस करना है P वेक्टर, तो ये आएगा प्लस 2i माइनस j माइनस 3k। करो इनका कैलकुलेशन, 3 प्लस 2 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया आपका PQ वेक्टर। वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है also AB वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो B वेक्टर हमने यहाँ पे 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप, इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, that is equal to 7i minus 4i is 3i cap minus 2j cap minus 6k cap। ठीक है, इसको हमें ये AB वेक्टर निकालने के बाद हमें फाइंड करना पड़ता है मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर, बिकॉज प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर ऑन AB वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा मैग्नीट्यूड, देखिए, that is nothing but under root of 9 plus 4 plus 36, that is root 49, और root 49 यानी 7 आ गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे। also डॉट प्रोडक्ट PQ वेक्टर डॉट AB वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर डॉट AB वेक्टर। PQ है 5i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट ये 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3 इंटू 5 15 माइनस 2 माइनस 12, तो ये आएगा 1। तो PQ वेक्टर डॉट AB वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 1। पहले हम प्रोजेक्शन निकालेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं प्रोजेक्शन ऑफ
projection of AB vector, sorry, PQ vector on AB vector, PQ vector on AB vector, ये सिर्फ स्केलर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, PQ vector dot AB vector अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB vector। तो ये PQ vector dot AB vector कितना आया 1 और ये आ गया 7। तो वेक्टर प्रोजेक्शन जब निकालेंगे, देयरफॉर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ PQ vector on AB vector is equal to आएगा 1/7 into AB vector, that is equal to 1/7 into AB vector। क्या है AB vector हमने फाइंड आउट किया है 3i cap minus 2j cap minus 6k cap। इसको ऐसा ही लिखो या 1/7 से उसको मल्टीप्लाई करके 3/7 i cap minus 2/7 j cap minus 6/7 k cap, that is vector projection of PQ vector on AB vector। समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। Find the values of lambda for which the angle between the vectors is obtuse। देखिए, if angle between, ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, angle between A vector and B vector is obtuse। इसका मतलब क्या होगा? ये जब obtuse है तो हम लिखेंगे A vector dot B vector must be less than 0। ये डॉट प्रोडक्ट निगेटिव होगा। Therefore we can say that 2 lambda square I cap plus 4 lambda into j cap plus k cap dot 7 I cap minus 2 j cap plus lambda k cap is less than 0। Therefore इनका प्रोडक्ट ले लो, क्या आएगा? ये 2 lambda square into 7 is 14 lambda square plus ये माइनस आएगा, minus 2 lambda into minus 2 is minus 8 lambda plus lambda is less than 0। यानी यहां पे आएगा 14 lambda square minus 7 lambda is less than 0। Therefore हम कहेंगे 2 lambda square minus lambda is less than 0। Therefore lambda common into bracket 2 lambda minus 1 is less than 0। अब देखिए यहां पे कंडीशन क्या आएगी? दो नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो यहां पे लिखेंगे हम therefore lambda is less than 0 and 2 lambda minus 1 is greater than 0। ये केस आ सकती है। दूसरी केस क्या आ सकती है? और में आएगा, और लैम्बडा अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 लैम्बडा माइनस 1 लेस देन 0 चाहिए। तो therefore we can say that lambda is less than 0 and lambda is greater than 1/2। इसको सॉल्व किए तो, और lambda is greater than 0 and इसके साथ lambda is less than 1/2। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट जब निगेटिव आता है तो एक को निगेटिव तो दूसरे को पॉजिटिव होना जरूरी है। अब ए वाली चीज पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? एट ए टाइम दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। एक नंबर जो लैम्बडा से 0 से छोटा है और 1/2 से बड़ा है, ऐसा नंबर नहीं हो सकता। Therefore we can say that lambda is greater than 0 and lambda is less than 1/2, means lambda must belongs to this open interval 0 to 1/2। तो lambda की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में चाहिए, जिसे हम 0 is less than lambda is less than 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो this is nothing but final answer, lambda must belongs to 0 to 1/2। यहां से आप थोड़ा उसको अच्छे से कनेक्ट हो जाइए। लैम्बडा इंटू 2 लैम्बडा माइनस 1, ये प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो ये दोनों में से एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम हमें दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो सेकंड कंडीशन इज पॉसिबल कंडीशन,
that lambda lies between 0 to 1/2. समझ में आया ये? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सीखा है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। ये सब क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम अगले लेक्चर में जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।